welcome. You're watching Market Meter on Money9. I'm Sakshi Batra. In this show, we get you all the action of the markets in the first half of trade, and we also get you some fundamental views by our experts who join us on this special show, who share with us their views on the stock markets, the trajectory that it is going to take, and the investor strategy that they should adopt in this current market as well. Joining us is a very special guest right now, Mr. Rajesh Agarwal, HOR of AUM Capital joins in. Thank you very much, Rajesh, sir, for joining in on this special show. The markets have been still trading at all-time high levels and near their high point of the day as well. There is some bit of choppiness as well that we can see right now. How are you approaching the current market? Sakshi, as far as the approach towards market is concerned, we have always been positive on this market because whatever be the index levels, you can always find value in some stocks where you can go ahead and invest. So whether it is an index of 9,000 or index of 16,000, if one is a long-term investor, by long-term investment, I mean to say somebody who's ready to hold for 12 months, 18 months, or even a longer period. So timing doesn't matter, but because it's very difficult to time the market, you never know. I have come across people who have sold their entire portfolio at around 11,000 odd levels, thinking that it won't go any further, and now we are standing at almost 16,000, I would say, 15,000 plus levels. So you never know when the correction will come, and waiting for correction. The biggest risk, I would say, in the market is not taking any risk. Risks are always there. Be in quality stocks, think long term, and invest. That's the strategy. Okay, so as far as the strategy is concerned, even at these high points, one should just stick to fundamentally good stocks and then continue to invest on dips as and when the opportunity strikes. But for today, I want to ask your views on the PSU banking index as well. Now, we have been seeing that from the last 3 or 4 trading sessions, this is the index that actually has surprised the markets from a long time. It was not performing, but it started performing as and when the union budget happened, and there were announcements around the privatization and recapitalization as well. But today we actually saw a sharp reversal in today's trading session only. PSU banking index was not performing early trade, but then suddenly there has been a spike. There is a strong buzz in the markets about how there could be a soon announcement on the PSU banking's merger as well, with regards to, say, IOB or Central Bank of India, including into this State Bank of India. Have you heard any of this, in the chatter that's happening all around? And what is your view on the PSU banking index? See, there are a lot of chatters going on around in the market. After the FM said in the budget that 2 or 3 banks might be privatized, after that, a lot of chatter is going on. So I don't know which one is true or which one is wrong. There are a lot of names going on. Without going into names, I would say that PSU banks, on a valuation parameter, if you see, they are trading at rock bottom prices just because there were NPA issues, just because there were government holdings and all those things. But since most of the banks have done their provisioning, secondly, in the budget itself, there were hints of a bad bank coming in that would solve all the problems. And we should not forget that PSU banks are such kind of banks, they have reached to very remote areas of the country. Some of the banks like SBI or PNB, you see the number of branches, they exceed the number of the so-called private new age private banks. So I would say, yes, there are value, but then there are risks associated to that also. You never know, tomorrow something new comes out. So it's better to be in the larger space. By larger space, I would say stick to SBI, where the numbers have been good. We have seen the third quarter numbers have been quite comfortable. Asset quality was good. And this, again, if something happens on the NPA front, that would be an added advantage. For a longer term horizon, by longer term, I mean to say by maybe 1 year, 2 year down the line, I won't be surprised if even from the current market price, SBI moves up by 40-50%. Okay. So if somebody has an appetite,
every fall should be taken as an opportunity to invest. Okay, great. So SBI could be a counter that long-term investors can definitely keep on their radar, even for the longer term of over 2 years. 40 to 50% upside from the current levels can be seen, according to Rajesh Agarwal as well. But Rajesh, what about the IT stocks right now? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो अभी आज के सेशन में मोमेंटम बिल्ड हुआ है, कल भी थोड़ा बहुत अच्छा मूव देखने को मिला था, ये सस्टेन रहेगा? अभी तक IT स्टॉक्स ने जो पिछले हफ्ते भर में जो हमने रैली देखी है मार्केट्स में बजट के बाद, उसमें इतना परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन अब क्या ये स्पेस अट्रैक्टिव लग रही है आपको, और यहाँ पर कुछ कंपनीज जहां पर आप अपना फोकस रखेंगे? सिर्फ ये कोरोना काल के बाद एक चीज तो तय है कि जो लोगों ने अपनी आईटी स्ट्रॉन्ग कर रखी थी, जो डिजिटाइजेशन स्पेस में थे, वो लोग सरवाइव कर गए, और दूसरे जो लोग हैं दूसरी इंडस्ट्री के, उन्हें भी अब लगने लगा है कि उन्हें आईटी में खर्चा करना चाहिए। तो आईटी एज ए स्पेस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, नो डाउट, लेकिन चूंकि इतना बढ़ गया है इसलिए थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। फ्रंट लाइन की बात करूं तो आई वुड से इन्फोसिस वुड बी द बेस्ट बेट इन ऑल थ्री ऑफ देम। अगर सेकंड लाइन की बात करूं तो एक कंपनी मेरी जहन में आती है, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी बढ़ गई है, लेकिन जिस तरीके से क्लाउड वगैरह में वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, उनके जो 10 प्रोडक्ट हैं वो टॉप थ्री उनमें बेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि वहां थोड़ा स्कोप बनता है। अदरवाइज लार्ज कैप में अगर रिस्क फ्री रहना हो तो मैं समझता हूँ इन्फोसिस इसके साथ जाना चाहिए। ओके, सो लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस आपको पसंद है। ओएनजी स्पेस जो है, ऑयल एंड गैस स्पेस की अगर बात करें, ये काफ़ी बज़ कर रहा है, खासतौर पर अगर हम क्रूड ऑयल प्राइसेस की भी बात करें तो 13 ईयर हाई पे आ चुके हैं प्री पैंडेमिक लेवल्स पर। ऐसे में अपस्ट्रीम कंपनीज जैसे ओएनजीसी परफॉर्म करती हुई लगातार नजर आ रही हैं, या फिर आज के सेशन में देखें तो अर्निंग्स का भी मोमेंटम हमें कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, जैसे बीपीसीएल। इस पूरे स्पेस को अभी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत एक्साइटिंग है, वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। हम लगातार बीपीसीएल पे लास्ट 2-3 साल से रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं, क्योंकि एक तो डिसइन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट है, बार बार अनाउंस हो चुका है, जस्ट वक्त की बात है, आज नहीं हो 6 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, और कोई बड़े नाम इनके साथ जुड़ते हैं, विदेशी नाम खास करके, तो मौजूदा स्तर से भी बहुत ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। और आज कल जो नतीजे आए शानदार आए, 16 रुपए के डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पिक ऑयल मार्केटिंग कंपनी में हूँ तो बीपीसीएल है। अगर क्रूड वगैरह या रिफाइनिंग वगैरह की बात की जाए, मैं समझता हूँ ओएनजीसी पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इतने अच्छे एसेट होने के बावजूद, डिविडेंड यील्ड अच्छी होने के बावजूद, इतने सस्ते वैल्यूएशन है, और टॉप ऑफ द पिक जो अनडाउटली रहेगा वो तो रिलायंस रहेगा। ओके, फाइन। तो ऑयल एंड गैस स्पेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, और लगातार जो Q3 अर्निंग्स में भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, उसका भी एक इफेक्ट आपको आज आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है ओएनजीसी अपस्ट्रीम मेजर्स में से, और साथ ही बीपीसीएल को भी आप देख सकते हैं ऑयल मार्केटिंग स्पेस से। अब फटाफट से राजेश आपके स्टॉक पिक्स पर आते हैं। अगले 1 से 2 साल तक के लिए कहीं अगर इन्वेस्टर्स अभी इस करंट मार्केट में, जबकि हाई वैल्यूएशंस काफ़ी स्टॉक्स की है, लेकिन कहीं पर अगर अच्छे मौके मिल रहे हो तो वो कहाँ निवेश करें? देखिए, ये बात से नकारा नहीं जा सकता है कि वैल्यूएशंस हाई हो गए हैं। अगर अपने मार्च के लोज से कंपेयर करें तो बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो 400%, 500% तक बढ़ गए हैं, लेकिन बावजूद उनके परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। और मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए कोई लेता है तो वहाँ अच्छे गेन हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा करेक्शन हो, आपके लेने के बाद अचानक से आपको दिखे कि 10, 5, 20 रुपया टूट गए, तो उसके लिए पैनिक ना करें, स्टैगर्ड भाव में खरीदारी करें। पहली पिक जो मैं देना चाहूंगा वो ग्रेफाइट इंडिया की रहेगी। अगर आप देखो तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की भारत में, जिसके 3 प्लांट भारत में है, एक जर्मनी में है, 98,000 टन की कैपेसिटी है। क्लाइंट लिस्ट अगर इनके देखेंगे तो जितने भी बड़े नाम है, फिर वो चाहे टाटा स्टील हो, सेल हो, जिंदल हो, सभी इनके क्लाइंट है। स्टील मेकिंग में ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। पेंटअप डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये बहुत अच्छा अपसाइड ले सकता है। 480 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा स्टॉक अगर कहना हो तो जिंदल स्टील एंड पावर का रहेगा। अगेन वो स्टील इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। कोल मिल्स, स्पंज आयरन अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। 125 मीटर की रेल बनाती है, जो कि सिर्फ यही कंपनी बनाती है, दूसरे किसी के पास अभी तक वो कुछ क्षमता नहीं है, और रेलवे से इनको बड़े अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। एंगुल की कैपेसिटी रैंप अप हो गई है, जिसके कारण से आने वाले दिनों में नंबर्स बेहतर होंगे।
और सबसे बड़ी बात जो इस कंपनी के साथ है, वो मैनेजमेंट ने ये बार बार दर्शाया है कि वो डेट कम करेंगे। अगर आप देखें तो हर तिमाही डेट कम होता जा रहा है, और जिससे मार्जिन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इतनी बढ़त के बाद भी मध्यम अवधि में, मैं लंबी अवधि की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्यम अवधि से 6 से 9 महीने में ये स्टॉक ₹350 तक जा सकता है। और अगर परफॉर्मेंस ऐसी ही रही, डेट वाकई में अच्छे लेवल से कम हो गया, तो हम ये टारगेट आगे भी रिवाइज कर सकते हैं। ओके। स्टॉक देना चाहूंगा गुजरात गैस का, जो कि अगर आप देखें तो गैस में बहुत अच्छा प्ले है। और सबसे अच्छी बात है, जो मोरबी में सिरामिक वगैरह की इंडस्ट्री को बढ़त मिल रहा है आफ्टर जीएसटी कह लीजिए, या ऑर्गेनाइज प्लेयर कह लीजिए, कोरोना काल से बहुत से अनऑर्गेनाइज प्लेयर आउट ऑफ मार्केट हो गए हैं, उसमें इस कंपनी को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि सिरामिक में गैस की बहुत जरूरत होती है और ये उसमें एक बड़ा प्लेयर है। वैल्यूएशन बहुत अच्छा है दूसरे गैस कंपनी से अगर कंपेयर किया जाए तो, और प्रोस्पेक्ट्स आने वाले दिनों में बहुत शानदार है। 520 के टारगेट के साथ यहाँ भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो 3 स्टॉक रिकमेंडेशंस राजेश के पोर्टफोलियो से आपको मिल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, खासतौर पर इस मार्केट में भी अपनी राय देने के लिए और ये स्टॉक रिकमेंडेशंस देने के लिए भी। एक फटाफट से रिकैप कर देते हैं। ग्रेफाइट इंडिया, और जहां पर अपसाइड टारगेट्स देख रहे हैं 480 के राजेश, जहां पर आप नोट कर सकते हैं अगले 6 से 9 महीनों के लिए ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। गुजरात गैस अच्छे नतीजों के बाद ऑलरेडी अपटिक में है, 520 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है। और जिंदल स्टील एंड पावर के लिए भी काफी बातें बताई, फंडामेंटली जो सपोर्ट कर रहे हैं अभी स्टॉक प्राइसेस को, और 350 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर अच्छी परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहती है तो राजेश ने ये भी बोला है कि आगे की तरफ टारगेट्स और भी वो रिवाइज करते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस खास चर्चा को यही समेटते हैं। आपके साथ अब जुड़ेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कार्तिक मल्होत्रा, जो कि बात करेंगे मनी मास्टर क्लास में आदित्य अग्रवाल से वेल्दिफाई इंडिया से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस स्पेशल शो।